Hello students, welcome back. And students, today we are going to study the third chapter from the book First Flight of 10th class. The name of the chapter is Two Stories About Flying. Okay, so students, this chapter is divided into two parts. The first part is the name of the first part is His First Flight by Liam O'Flaherty, and the second part is The Black Aeroplane by Frederick Fawcett. Okay, so this chapter is divided in two parts, and first we'll go through the first part and later we'll do the second part. Okay, so before, I would like to tell you few things about this chapter that we're going to study. First part, His First Flight by Liam O'Flaherty. So in this part, it's a story about a bird. एक चिड़िया के बारे में एक स्टोरी है, seagull. Okay, and this bird, it's a story of the achievement of the great victory of a bird जिसको बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता है, who is very scared of flying, and later उसके अंदर क्या ऐसी हिम्मत आती है that it starts flying, and उस अपने डर के ऊपर वो एक अचीवमेंट उसको लगता है, अपने डर को काबू करती है वो चिड़िया, एंड वो it starts flying in the sky. So it is about that bird. We'll read the chapter, I'll discuss the meaning of the difficult words, and we'll do the explanation also of this chapter. Okay, so we'll start studying this. The young seagull was alone on his ledge. So students, ledge मतलब क्या होता है? A narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. Cliff एक kind of पहाड़ की चोटी को हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो एक यंग सीगुल, एक बहुत ही छोटा सीगुल एक क्लिफ पे बैठा हुआ है वहाँ पे, और वो अलोन वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है. वाई ही इज सिटिंग अलोन, दैट विल कम टू नो व्हेन वी रीड फर्दर. His two brothers and his sister are already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. So यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उसके जो बाकी के भाई बहन हैं वो उड़ चुके हैं ऑलरेडी, बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड, ओनली ही इज अफ्रेड. सो उसके जो भाई बहन है वो उड़ चुके हैं, एंड ही इज अफ्रेड, उसको डर लग रहा है उड़ने से. ही इज समवेयर ओवर अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग विच इज स्टॉपिंग हिम, एंड ही इज स्टिल सिटिंग देयर ऑन दैट क्लिफ अलोन. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद क्या करता है, वो थोड़ा सा पीछे स्टेप लेता है, एंड देन एकदम से आके he tries to go further, he tries to fly. एज ब्रिंक का मतलब होता है एज, एकदम एज पे आके वो उड़ने की कोशिश करता है, बट अपने विंग्स को भी फ्लैप करने की कोशिश करता है. फ्लैप मतलब ऐसे फड़फड़ाना विंग्स को, तो वो करने की भी कोशिश करता है, बट देन अगेन ही फील्स अफ्रेड, मतलब उसको फिर से डर जाता है उस चीज को. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. So when he is looking, from that cliff to down, तो he can see a very huge sea. एक बहुत ही गहरा समुद्र, बहुत दूर तक एक समुद्र उसको दिख रहा है, और वो दूर तक देख सकता है कि समुद्र कितना आगे तक है और कितना गहरा है. तो उसको somewhere he is scared, he is not able to फ्लाई, इसको डर लग रहा है कहीं ना कहीं वो चीज देख के. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. So now what happened, जब वो जो सीगुल था, he felt certain that his wings would never support him. उसको लगा कि उसके जो wings हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम उसको support नहीं करेंगे, they are still very soft. So he is somewhere afraid of his wings also, कि उसको support नहीं करेंगे when he tries to fly. एंड फिर क्या करता था, वो वापस से अपने एक वो एज पे, एक क्लिफ पे एक होल है जहाँ पे वो सोता है रात को, वो वापस उसके अंदर जाके और वहाँ जाके बैठ जाता है.
His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. Now, what happened, students, here? जो उसके सेगुल के मदर एंड फादर थे, नाउ दे आर ऑल्सो दे स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिम. श्रिली मतलब बहुत ही एक तीखी आवाज़ में, बहुत ही तेज़ उसके ऊपर चिल्लाने लगे. एंड अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना. ठीक है. सो उसके मम्मी पापा भी आके अब उसको डांटने लगे कि इफ़ यू उसको धमकी देने लगे कि अगर तुम नहीं उड़े, अगर तुम नहीं आगे बढ़े अभी, तो वी विल नॉट गिव यू फूड. स्टार्व मतलब भूखे रहना, तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा. एंड if you could not move, your life will not give you food also, and then for the life you will be here only, you'll stuck here, you'll not move then. So students, as every parents, उसके सीगुल के parents भी, they were trying very hard कि कैसे भी करके they were thinking of different ways how to make him move, how to make him fly. तो वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह उड़ने लगे यहाँ से. बट जो सीगुल था वो इतना डरा हुआ था, इतना वो था फॉर द लाइफ ऑफ हिम, मतलब वो इतना, मतलब उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, बट वो चाहकर भी वो नहीं उड़ पा रहा था, वो हिम्मत नहीं कर पा रहा था आगे बढ़ने की. सो वो वहीं पे ऐसे बैठ गया जैसे कोई मूर्ति हो, तो वो बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था वो चीज़ करने की. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. So अब उसको 24 hours हो चुके हैं, मतलब एक पूरा दिन ख़त्म हो चुका है. ही इज़ स्टिल सिटिंग देयर अलोन. कोई उसके पास नहीं आया कुछ पूछने, कुछ बोलने. सो इज़ अलोन सिटिंग देयर होल डे. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. So एक दिन पहले वो देख रहा था उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन को, they were teaching him to how to fly and how to fly perfectly. So उसके पेरेंट्स उसके दूसरे भाई बहन को वो चीज़ सिखा रहे थे. Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim का मतलब होता है to move lightly just above a surface on the sea. जैसे अगर कोई बर्ड है सी के ऊपर, वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो जस्ट उसका जो लेग्स होते हैं वो जस्ट ऑन द सर्फेस होते हैं ऑफ द सी. ओके. सो हियर द पोएट इज टेलिंग दैट द ऑथर इज टेलिंग दैट उसके पेरेंट्स जो थे सीगुल के, वो उसके भाई बहन को स्किम करना सिखा रहे थे. सी के ऊपर कैसे अपने सिर्फ लेग्स के एज रख के कैसे उस पर फ्लाई करना है, वो उसको सिखा रहे थे उसके भाई बहन को. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Here herring means a soft finned fish. ठीक है. सो उसने क्या देखा, अपना जो छोटा भाई था, बड़ा भाई था, उसको देखा कि उसने एक फिश को भी पकड़ लिया है. ठीक है. एक छोटी सी फिश को उसने पकड़ लिया है. एंड डेवर इज ईट हंग्रीली और क्विकली. ठीक है. तो और उसको लेके वो क्विकली खाने भी लगा है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. कैकल इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड्स. ओके. सो जब उसके भाई ने ये चीज़ करी, एक छोटी सी बर्ड को पकड़ा, एंड व्हेन ही वाज ईटिंग इट, सो उसके पेरेंट्स बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे दैट फाइनली हमारे बच्चे ने फ्लाई करना सीखा, एंड ही हैज़ caught a fish also. So they are feeling happy and उसको प्रेस करने लगे उस चीज़ पे, उसके भाई को. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So now what happened? All the morning the whole family had walked अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे. सो सुबह से ही उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, वहाँ पे प्लेटू में वो वहाँ पे आना शुरू हो गए थे. एंड उसके बाद वो लोग एक ऑपोजिट क्लिफ पे गए, एंड दे स्टार्टेड टीजिंग हिम. टीजिंग मतलब चिढ़ाना उसको, टॉन्टिंग मतलब चिढ़ाना, एंड कावर्डाइज मतलब टीजिंग समवन फॉर नॉट बीइंग ब्रेव.
सो उसकी पूरी फैमिली ऑपोजिट क्लिफ पे बैठ के उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तुम तो बिल्कुल भी बहादुर नहीं हो, यू डोंट हैव दिस मच स्ट्रेंथ and you're not strong enough to fly. So they were all teasing him that day. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So now what happened, students? The sun has now ascending. Ascending का मतलब है going upwards. सूरज जो था वो it was rising. The sun was rising and blazing on his ledge that faced the south. मतलब सूरज almost it was rising and the seagull is still sitting there. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So now he is feeling hungry also क्योंकि उसने पूरा कल से उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है. And because of that heat, क्योंकि सूरज आ चुका है तो he is feeling that heat also. Because of that he is feeling more hungry of that thing. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Now what happened? When he is sitting there on the ledge, he stepped slowly out to the brink of the ledge. मतलब वो ledge के एकदम स्लोली करके वहाँ पे पास ब्रिंक करने लगा, मतलब पास में जाने लगा. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक लेग पे खड़ा होके और एक लेग उसने अपने पंख के नीचे छुपा लिया. देन ही क्लोज्ड वन आई एंड दूसरी आँख भी उसने धीरे धीरे करके बंद कर ली. एंड ही स्टार्टेड pretending to sleep, मतलब ऐसे दिखा रहा था कि वो सो रहा है, to just to show his family, just to attract them so that they can come and talk to him, because it's been 24 hours he's alone sitting there, not eaten anything. So he wants to his people to come and talk to him, give him little support and strength, but nobody's come to talk to him. So that is why he's doing these things so that they can come and talk to him. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. So उसके इतनी कोशिश करने के बाद भी no one is bothered to say him, to look at him. इतना कोशिश करने के बाद भी उसके भाई बहन ने बिल्कुल भी उसको नहीं देखा, ना ही उसको कुछ पूछा. They were sitting on that plateau and they were just sleeping. Dozing means sleeping. So उन्होंने अपनी neck अपनी ये नीचे रखी हुई थी and they were just sleeping there. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. So उसके जो फादर थे, अब उसके फादर भी प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, तो उसके फादर भी अपने फेदर्स को ठीक कर रहे थे. एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, क्योंकि शी इज़ अ मदर आफ्टर ऑल, तो उसकी सिर्फ मदर उसकी तरफ देख रही थी, उन्होंने ध्यान दिया. एंड nobody bothered to look at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust up forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So उसकी जो मदर थी, she was also standing on the plateau and उसका making her little hump hump high. उसकी जो hump मतलब ये hump जो पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको high करके she was standing there and her white breast thrust मतलब push करना, तो अपनी breast को, अपना जो आगे का हिस्सा है उसको उन्होंने push किया हुआ था आगे की साइड पे. Now and again she tore at a piece of fish, और उनने अपने मुंह में एक fish, छोटी सी fish दबा रखी थी. And she was she was just scraping her beak, अपनी जो चोंच थी एक रॉक के ऊपर बैठ के वो अपनी चोंच को थोड़ा तेज करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उस फिश को इजीली चबा सके, इजीली काट सके, ठीक है. सो शी वॉज डूइंग दैट एक्टिविटी स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेटो.
The sight of the food maddened him. Now he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Wet means to sharpen, जैसे मैंने आपको बताया था. अब जो सीगुल था वो अपनी मदर को ये चीज़ करते हुए देख रहा है और उसने फूड भी देख लिया एंड ही इज़ हंग्री ऑल्सो. सो उसकी मदर को वो करते हुए देख के वो और भी ज़्यादा बेचैन पागल हो गया है. एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू डू दैट सेम थिंग, क्योंकि उसको भी वो चीज़ करनी अच्छी लगती है. टू शार्पन हिज बीक एंड यू नो टू कट द फिश, ऐसे करके वो शार्प करके वो भी यही सेम चीज़ करता है. तो वो अपनी मदर को देख के वो सेम चीज़ करना चाहता है. एंड प्लस ही इज़ हंग्री ऑल्सो नाउ. सो ये चीज़ उसको बहुत बेचैन कर रही है, बहुत पागल कर रही है ये चीज़ उसको. गा 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 ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब ये एक साउंड है प्रोड्यूस्ड बाय सीगुल. तो वो एकदम ऐसे ना चिल्ला चिल्ला के गा 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 ऐसे करके चिल्ला रहा होता है, अपनी मदर को बुला रहा होता है एंड बोलता है कि मुझे फूड दो, मुझे कुछ खाने के लिए दो. का कोला, शी स्क्रीम्ड बैक derisively. Derisively मतलब in a manner showing someone that he or she is stupid. So उसकी मदर जो थी वो भी वापस से चिल्लाने लगी, का कोला ऐसे करके वापस से सीगुल के ऊपर चिल्लाने लगी. एंड शी डिरिसिवली, जैसे मैंने आपको बताया, एंड वो उसको ये बता रही थी कि कितने स्टूपिड हो तुम, इतनी सी चीज़ के लिए यू आर जस्ट शाउटिंग. जो चीज़ तुम्हें करनी है तुम वो नहीं कर रहे हो, एंड फॉर सच थिंग यू आर शाउटिंग एंड क्रिएटिंग नॉइज हियर. ऐसे करके उसकी मदर उसको डांटती है. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. But वो plaintively का मतलब होता है having a sad quality. But उस चीज़ के बाद भी वो sad होके अपनी मम्मी को बुलाने लगा. एंड थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी जो he uttered a joyful scream मतलब बहुत ही joyfully वो चिल्लाने लगा. फिर उसके बाद his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी मदर जो थी फिश का पीस लिया उन्होंने and she was also flying towards him. अब वो उसकी तरफ जाने लगी. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसकी जो मदर थी जो उसकी तरफ फूड लेके जा रही थी, सो उनको देख के वो बहुत एक्साइटेड हो गया. ही फेल्ट हैप्पी समवेयर दैट नाउ फाइनली आई विल गेट सम फूड टू ईट. ओके, सो उस हैप्पीनेस में इतना ईगर हो गया वो उस चीज़ में. एंड ही स्टार्टेड टैपिंग हिज बीक, अपनी जो बीक जो चोंच है रॉक के ऊपर टैप करता है बार बार. एंड अपने जो फीट है वो भी टैप करता है. एंड अपनी मम्मी के थोड़ा पास जाने की कोशिश करता है, थोड़ा और पास जाने की. बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड का मतलब होता है रुक जाना, टू स्टॉप. हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. बट देन वॉट हैपेंड, जैसे ही उसकी मदर जो थी वो उसके ऑपोजिट ही थी. एंड एज सून एज शी वॉज रीचिंग नियर टू हिम शी स्टॉप्ड. एक बीच में वो एकदम से रुक गई, ठीक है, और उनके जो विंग्स थे एकदम से मोशनलेस हो गए. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो उनके मुंह में जो फिश थी वो एकदम थोड़ा पास में ही थी, मतलब शी वॉज अबाउट टू रीच हिम, और वहीं पे उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने आप को. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसने थोड़े टाइम के लिए वेट किया, ठीक है, वो भी सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया अपनी मदर को देख के कि अभी तो ये इतना एकदम अच्छे से आ रही थी, सडनली वाई शी स्टॉप्ड. सो उसने थोड़ा वेट किया. एंड देन जब उसने देखा कि उसकी मदर आ ही नहीं रही है, वहाँ से हिल ही नहीं रही है, सो वॉट हैपेंड, हंगर की वजह से वो एकदम पागल हो चुका था, एकदम क्यूरियस हो चुका था. एंड ही डाइव्ड ऑन द फिश के ऊपर उसने डाइव किया एकदम से. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. So then what happened? जब वो सीगुल था, when he dived, you know, to take that fish, अब उसने देखा
कि वो तो उसने छलांग तो लगा ली है, ठीक है, उड़ने लगा है वो, और जैसे उसने वो चीज़ रियलाइज करी तो वो एकदम से ऊपर नीचे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाने लगा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. फिर उसको एकदम से डर लगा कि ये क्या हो गया, मैं तो उड़ने लगा हूँ अब ना. उसको ये चीज़ रियलाइज हो गई है, ठीक है, एंड उसका एकदम से दिल बैठ गया, एकदम से उसको अजीब सा लगने लगा. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. So कुछ टाइम के लिए उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम सुन्न हो गया था उसके कान वगैरह. एंड इट ओनली लास्टेड अ मिनट, 1 मिनट के लिए उसको ऐसा अजीब सा लगा. बट उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने विंग्स जो थे स्प्रेड कर दिया आउटवर्ड्स टू फ्लाई. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. So students, now what happened, the moment he realized that now he's he's feeling better, जब उसने अपने wings spread किए, so now उसकी जो विंड है, जो हवा वहाँ चल रही है, ही कुड फील द विंड ऑल ओवर हिज बॉडी, अपनी स्टमक के, इट इज गोइंग अगेंस्ट हिज स्टमक, देन हिज फीट, हिज विंग्स. सो ही कुड फील दैट विंड, दैट सॉफ्ट विंड विच इज कमिंग देयर, एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. सो नाउ अब उसके वो जो डर था वो खत्म हो चुका है, एंड नाउ ही उसको वो डर नहीं है कि वो गिर जाएगा, बिकॉज ही इज फ्लाइंग नाइसली नाउ. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. So soaring का मतलब है यहाँ पे flying. So now he is finally flying. Okay? And gradually downwards and upwards. तो धीरे धीरे करके कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे करके उसकी movement बताई गई है यहाँ पे. He was no longer afraid. He just felt little bit डिजी मतलब यहाँ पे होता है फीलिंग ऑफ अनकम्फर्ट एंड मे बी लूजिंग बैलेंस. तो क्योंकि उसने अभी स्टार्ट किया है, ही उसके अंदर वो डर तो नहीं है, बट वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ज़रूर था. उसके अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स. गागा 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 Kokala. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. So these are the sound produced by birds. And उसकी जो wings थे वो flap करने लगा. So वो उड़ने लगा है, अब उसको कोई डर नहीं है. तो ही इन दैट हैप्पीनेस ही इज मेकिंग दोज साउंड्स, प्रोड्यूस करने लगा वो सारे साउंड्स, ठीक है. और उसकी जो मदर भी थी, शी इज ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, वो उसके पास में ही थी. एंड वो भी अपने जो विंग्स थे बहुत ही लाउड नॉइज के साथ फ्लैप करने लगी. वो भी उसके साथ स्क्रीम कर रही थी, जॉयफुली शी वॉज स्क्रीमिंग. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. So उसकी जब मदर भी स्क्रीम कर रही थी तो he screamed and he was they were conversing in their own languages. And उसके फादर भी उसके पास ही उड़ रहे थे and he was also screaming. वो भी अपना चिल्ला रहे थे because they were all happy. He saw his two brothers and his sister flying around him, cavorting का मतलब है leaping like a horse, and banking मतलब flying with one wing higher and the other down, and soaring and diving. So students, these are the these are some of the techniques of flying जो birds usually करते हैं. So cavorting, banking, soaring and diving, these are the different motions, movements, flying movements of the birds. Cavorting, as I was telling you, leaping like a horse, मतलब horse जैसे horse की तरह leap ले लेके fly कर रहे थे. And then banking मतलब अपना एक wing ऊपर एक wing नीचे, कभी ऐसे flip flap movements of the wings. Soaring means एकदम से ऊपर चले जाना, and diving means एकदम से नीचे चले जाना.
सो उसकी जो पूरी फैमिली थी दे वर फ्लाइंग लाइक दिस बिकॉज दे वर हैप्पी, क्योंकि उस सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भरी थी एंड दे ऑल वर हैप्पी, उसकी पूरी फैमिली खुश थी एंड दैट इज वाई दे वर मूविंग लाइक दिस. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. So अब उसको जो सीगुल था वो बिल्कुल ही भूल चुका था कि वो कभी उड़ने से इतना डरता था कि वो बिल्कुल उड़ ही नहीं पा रहा था. तो जब वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा था तो उसे वो चीज़ याद ही नहीं रही, उसका वो डर याद ही नहीं रहा, भूल ही चुका था वो. एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसने अपने आप को डाइव करवाया एंड देन ही स्टार्टेड डाइविंग ऑल्सो, सॉर, कर्व, श्रीकिंग श्रिली, मतलब एक बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाने लगा, अपना साउंड प्रोड्यूस करने लगा. एंड ही वॉज फ्लाइंग हैप्पीली बिकॉज ही वॉज फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड समवेयर इन हिज हार्ट. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight आउट ओवर द ओशन. सो अब वो क्या हुआ, वो सी के एकदम पास में आ गया बिल्कुल, ठीक है, एंड बहुत ही स्ट्रेट फेस करके ओशन के ऊपर ही स्टार्टेड फ्लाइंग ओवर द ओशन. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. कॉड का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस बाय बर्ड्स. सो उसने अपने आप को ग्रीन सी के ऊपर देखा, मतलब ग्रीन सी के ऊपर वो जब उड़ रहा था. सो अब उसने क्या देखा कि उसके सामने इतना गहरा समुंदर है एंड विद लिटिल रिजेस, रिजेस का मतलब होता है वेव्स, लहरें, ठीक है. सो उसने अपने आगे इतना गहरा समुद्र देखा और रिजेस देखे, मतलब लहरें देखी, एंड उसने अपनी चोंच को साइडवेज किया और अपना साउंड निकालने लगा, kaa kaa करके अपना साउंड निकालने लगा वो. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. सो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके भाई बहन थे उनको तो ये चीज़ आती थी समुद्र पे लैंड करना. सो दे वर ऑलरेडी अहेड ऑफ हिम, उससे आगे थे, एंड दे वर लैंडेड ऑन दैट सी. दे वर beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. सो देवर बिकॉनिंग, मतलब उसको सिग्नल दे रहे थे कि वो उनको फॉलो करे. सो उसके जो भाई बहन उसके पेरेंट्स थे वो उसको बोल रहे थे कि चिल्ला चिल्ला के कि तुम हमें फॉलो करो, जैसे हम बैठे हुए हैं अपने लेग्स को ऊपर टिका के, यू ऑल्सो ट्राई टू डू दैट थिंग. He dropped his legs to stand on the green sea and he was also trying to follow his brothers and his parents. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो जब उसने वो चीज़ ट्राई करी उसके वो डूबने लगा, ठीक है, बिकॉज ही जस्ट नाउ ही स्टार्टेड फ्लाइंग. तो उसको इतने अच्छे से अभी ये चीज़ करनी नहीं आती है, तो वो चीज़ नहीं कर पाया और वो एकदम से डर गया, वो चिल्लाने लगा एंड डर के मारे उसने अपने जो पंख थे वो उसने फड़फड़ाना शुरू कर दिए बिकॉज ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, वो डूबने लगा था वहां पे. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. But वो टायर्ड भी हो चुका था बिकॉज उसके लिए ये सब एकदम नया था, उसने अभी अभी उड़ना सीखा है. सो ही इज टायर्ड ऑल्सो, प्लस ही वॉज वीक क्यों था, क्योंकि उसने खाना ही नहीं खाया था पूरे एक दिन से, तो ही वॉज हंग्री ऑल्सो एंड ही कुड नॉट राइज एंड एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज. तो उसने आज ये जो नई चीज़ एक्सपीरियंस करी, एक्सरसाइज करी, उसके लिए वो बहुत ही नई चीज़ थी और वो बहुत ही एग्जॉस्ट होने लगा था उस चीज़ की वजह से, बहुत टायर्ड हो चुका था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. अब क्या हुआ, उसका जो फीट था वो समुद्र पे उसने ऐसे रखा धीरे धीरे एंड विद हिज बेली ही टच द सी एंड नाउ ही स्टार्टेड
स्विमिंग, वो धीरे धीरे करके स्विम करने लगा, वो तैरने लगा है. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrapes of dogfish. He had made his first flight. So now students, as we can see कि अब वो जब float करने लगा है तो उसकी family भी वही थी. They were shouting for him and they praising him, उसको सराह रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे. And they were all very happy because he started flying. तो वो अपनी बीक में जो थे डॉग फिश लेके, उसके टुकड़े लेके उसको खिलाने के लिए जा रहे थे सीगुल को. ठीक है. एंड दे सेड दैट ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली है. ठीक है. सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा, दैट देयर इज दिस सीगुल हु इज सो अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, एंड फाइनली इतना कुछ करने के बाद उसने अपने डर को काबू किया. ही हैज फाइनली achieved victory over his fear of flying. एंड उसमें उसकी फैमिली ने उसको किस तरह से सपोर्ट किया, प्रेस किया, एफर्ट लगाए. स्पेशली उसकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें फॉर मेकिंग हिम फ्लाई, गिविंग हिम दैट कॉन्फिडेंस. And this was it in this chapter, students. I hope you enjoyed it. I hope it's all clear. So please do like and subscribe to this channel, and thank you so much.